Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. I hope that you all are fine. Welcome to online classes of Noor School and College Mansehra. I am Ishtiyaq Ahmed, lecturer in English. So, dear students, in the previous lecture we have started our unit number 2, that was the strange voyage of Sindbad. So, without wasting any moment, we are going to start our today's lecture. But before starting our today's lecture, I'm going to ask few questions from you about the previous lecture which we learned the other day. So, my first question is, why did Sindbad auction all his household goods? कि सिंदबाद ने अपनी तमाम घरेलू अशिया को एक आम नीलामी में क्यों फ़रोख्त किया था? What was the reason behind that? You must have remembered that I have already told you during the lecture that this question is also included in your comprehension. So, what will be the answer of that question? The answer will be Sindbad sold all his entire, or Sindbad sold his entire household good to achieve wealth, and after this he joined a company of merchants who traded by the sea. Second question is, what did Sindbad see? And its answer will be, when he was on an island. Sindbad saw a huge dazzling white object. And the third question is, what was Sindbad looking for when he got stuck in an island? So at that moment, Sindbad was looking for some means of escape. So these were some questions about the previous lecture. Now I'm going to start our today's lecture from that point. So take a pen or pencil in your hand. Descending from the tree, I hastily collected what remained of my provisions and set off as fast as I could go towards it. As I drew near it seemed to me to be a white ball of immense size and height, and when I touched it, I found it marvelously smooth and soft. Descending from the tree, दरख्त से नीचे उतरने के बाद, I hastily collected. Underline the word hastily. Its English meaning is quickly, यानी कि जल्दी से, फुर्ती से, तेज़ी से. I hastily collected. मैंने फुर्ती से या तेज़ी से इकट्ठा किया. What remained of my provisions. Provisions से मुराद हमने क्या किया था? खाना वगैरह के, ठीक है. एंड रिमेन मीन्स बाकी मांदा, बचा खुचा. मैंने अपने खाने के बाकी मांदा सामान को इकट्ठा किया. एंड सेट ऑफ एज फास्ट एज आई कुड गो टूवर्ड्स इट, और उसकी तरफ इतनी तेज़ी से रवाना हुआ जितना मैं जा सकता था, ठीक है. यानी कि जो उसे वाइट इमेंस एक बड़ा सा ह्यूज डेजलिंग ऑब्जेक्ट दिखाई दिया, उसकी जानिब बढ़ा. एज आई ड्रू नियर इट, जूँ ही मैं उसकी जानिब बढ़ा. एज आई ड्रू नियर इट, जूँ ही मैं इसके करीब पहुँचा. एज आई ड्रू नियर, जूँ ही मैं करीब पहुँचा. इट सीम्ड टू मी टू बी a white ball of immense size. Underline the word immense. Its English meaning is huge, बेहद या बड़ी. Height mean ऊंचाई and size mean जिसामत. As I drew near, जो ही मैं करीब पहुंचा, it seemed to me, तो मुझे ऐसा लगा, to be a white ball of immense size. जैसे ही मैं इसके करीब पहुंचा तो मुझे ये एक बहुत बड़ी जिसामत और ऊंचाई वाली सफ़ेद गेंद दिखाई दी. And when I touched it, और जब मैंने इसे छुआ, I found it marvelously smooth and soft. Underline the word marvelously. Its English meaning is wonderfully, यानी कि अजीब. And smooth means हमवार. And when I touched it, और जब मैंने इसे छुआ, I found it marvelously smooth and soft. तो मैंने इसे अजीब, हमवार और नर्म पाया. As it was impossible to climb it, चूँकि इस पर चढ़ना नामुमकिन था. For it presented no foothold. No foothold से मुराद पाँव के पकड़ की जगह, यानी कि जिस तरह कोई छोटी सी जगह हो, हमने किसी दरख्त वगैरह पर चढ़ना हो तो पाँव को किसी न किसी जगह पे हम रखते हैं जहाँ पे हमारा पाँव थोड़ा अटक जाता है, फिर हम उस पर चढ़ाई करते हैं. तो इसकी बात कर रहा है कि for it presented no foothold, क्योंकि इस पर पाँव की पकड़ की कोई जगह न थी, foothold. I walked round about it. मैंने इसके गिर्द चक्कर लगाया. Seeking some opening. Underline the word seeking. The word seeking means looking for, ठीक है, तलाश करना.
सीकिंग सम ओपनिंग, ताकि कोई रास्ता नज़र आ जाए, या ताकि कोई रास्ता तलाश कर पाऊँ. बट देयर वॉज नन, लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता ना था. By this time, the sun was near setting, but quite suddenly it felt dark. It fell dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me, and I saw with amazement that it was a bird of extraordinary size, which was hovering near. Then I remembered that I had often heard the sailors speak of a wonderful bird. Then I remembered, called a rock, and it occurred to me that the white object which had so puzzled me must be its egg. By this time, इस वक्त, the sun was near setting, सूरज गरूब होने के करीब था. But quite suddenly, लेकिन तब अचानक, it fell dark, गहरा अंधेरा छा गया. Something like a huge black cloud came swiftly over me. We have already discussed that word swiftly. And what was the English meaning of that word swiftly? Its English meaning was quickly. ठीक है, तेज़ी से. समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड कैम स्विफ्टली ओवर मी. मेरे ऊपर काले बड़े बादल जैसी कोई चीज़ तेज़ी से आई. एंड आई सा विद अमेजमेंट, और मैंने हैरानगी से देखा, दैट इट वॉज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स गैर मामूली. दैट इट वॉज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज, कि ये एक गैर मामूली जिसामत वाला परिंदा था. विच वॉज हॉवरिंग नियर. हॉवरिंग मीन्स मंडलाना, ठीक है, यानी कि ऊपर ही उड़ रहा था. विच वॉज हॉवरिंग नियर, जो कि करीब ही मंडला रहा था. देन आई रिमेंबर्ड, तब मुझे याद आया, दैट आई हैड ऑफन हियर्ड द सेलर्स, कि मैंने अक्सर मल्लाहों से सुना था, स्पीक ऑफ अ वंडरफुल बर्ड, जो कि एक अजीब व गरीब परिंदे के बारे में बात करते थे, कॉल्ड अ रॉक, जिसे अरबी रुख कहा जाता था. ठीक है, रॉक अरबी रुख. एंड इट अकर्ड टू मी, और मुझे ऐसा लगा, दैट द वाइट ऑब्जेक्ट, कि वो सफ़ेद चीज़, विच हैड सो पजल्ड मी, जिसने मुझे इतना उलझा रखा था. पजल मीन्स उलझाना. मस्ट बी इट्स एग, यकीनन इसका अंडा होगा. सो हेयर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन अराइजेज, दैट व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज बर्ड, कि वो जो परिंदा था गैर मामूली जिसामत वाला, उसका नाम क्या था. सो व्हाट्स इट्स नेम? Rock. Its answer will be, the name of the bird was rock, or you can say that the name of extraordinary size of the bird was, the name of the bird that was of extraordinary size, its name is rock. Sure enough, the bird settled slowly down upon it, covering it with its wings to keep it warm. And I sat close beside the egg in such a position that one of the bird's feet, which was as large as the trunk of a tree, was just in front of me. Sure enough, यकीन के लिए यही काफ़ी था. The bird settled slowly down upon it. Settled, here the word settled means sit, better. The bird settled slowly down upon it. परिंदा आराम से इस पर बैठ गया. Covering it with its wings, और इसे अपने परों से ढांप लिया. टू कीप इट वार्म, गर्म रखने के लिए. ठीक है, इसे गर्म रखने के लिए अपने परों से इसे ढांप दिया. एंड आई सेट क्लोज बिसाइड द एग. क्लोज वर्ड मीन्स नियर, करीब. बंद भी होता है लेकिन यहाँ पर करीब होगा. एंड आई सेट क्लोज बिसाइड द एग इन सच अ पोजिशन, और मैं ऐसी हालत में अंडे के करीब बैठ गया, दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट, कि परिंदे की एक टांग, वाज विच वॉज एज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री, जो कि इतनी बड़ी थी जैसा कि दरख्त का तन्ना, वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने थी. टेकिंग ऑफ माई टर्बन, टर्बन मीन्स पगड़ी. टेकिंग ऑफ माई टर्बन, आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली. अंडरलाइन द वर्ड सिक्योरली. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज टाइटली, मजबूती से. आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट, मैंने अपने आप को मजबूती से इसके साथ बांध दिया. विद द होप, इस उम्मीद के साथ, दैट द रॉक, के अरबी रुख, व्हेन इट टुक फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब ये अगली सुबह उड़ान भरेगा, वुड बियर मी अवे, तो मुझे दूर ले जाएगा. विद इट, इसके साथ, तो मुझे इसके साथ दूर ले जाएगा. फ्रॉम द डिजर्टेड आइलैंड. अंडरलाइन द वर्ड डिजर्टेड. इट्स इंग्लिश मीनिंग इज लोनली, यानी कि वीरान या सुनसान.
बामुहावरा तर्जुमा क्या हो जाएगा? टेकिंग ऑफ माई टर्बन, अपनी पगड़ी को उतारने के बाद, आई टाइड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट विद द होप, मैंने इस उम्मीद के साथ अपने आप को उसके साथ मजबूती से बांध दिया, दैट द रॉक व्हेन इट टुक फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग, कि जब अरबी रुख अगली सुबह उड़ान भरेगा, वुड बियर मी अवे विद इट फ्राम द डिजर्टेड आइलैंड, तो वो मुझे भी अपने साथ इस वीरान जजीरे से दूर ले जाएगा. Here the comprehension question arises that with which thing सिंदबाद tied himself, सिंदबाद ने अपने आप को किस चीज़ के साथ बांधा था? तो दो सेंसेस में आप जवाब देख सकते हैं. एक तो ये कि अरबी रुख की टांग के साथ बांधा, और दूसरा ये कि अपनी पगड़ी के साथ बांधा. सो सिंदबाद tied himself with his turban with the bird's feet, with the one of the bird's feet. Going towards the next page, page number 16. As soon as the dawn appeared, the bird rose into the air, carrying me up and up, till I could no longer see the earth, and then suddenly it descended so quickly that I lost consciousness. When I became aware that the rock had settled in, and that I was once again upon solid ground, I hastily untied my turban from its foot and freed myself. As soon as the dawn appeared, जूँ ही तलुए आफ्ताब हुई, ये जूँ ही सूरज नमूदार हुआ, ठीक है, यानी कि सुबह की बात कर रहा है कि सुबह हुई. द बर्ड रोज इन टू द एयर कैरिंग मी अप एंड अप, तो परिंदा मुझे ऊंचे से ऊंचा ले गया, परिंदा मुझे फ़िज़ा में ऊंचे से ऊंचा ले गया. एंड टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ, हत्ता कि मुझे ज़मीन भी दिखाई ना देती थी, यानी कि इतना ऊंचा ले गया कि मुझे ज़मीन भी दिखाई नहीं दे रही थी. एंड देन सडनली, और तब अचानक, ए डिसेंडेड सो क्विकली, वो इतनी तेज़ी से नीचे उतरा. असेंडिंग होता है ऊपर चढ़ाई करना, और डिसेंडिंग होता है उतरना. इट डिसेंडेड सो क्विकली, वो इतनी तेज़ी से नीचे उतरा, दैट आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस, कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा. कॉन्शियसनेस शऊर को बोलते हैं, ठीक है, होशो हवास को. लॉस्ट खोना, कि मैं अपना होशो हवास खो बैठा. When I became aware, underline the word aware, its English meaning is conscious of. When I became aware, जब मुझे होश आया, When I became aware, जब मुझे होश आया, the rock had settled, तो परिंदा, settled means sit down, यानी कि बैठना, sit. The rock had settled, तो परिंदा या अरबी रुख बैठा हुआ था. And that I was once again upon solid ground, और मैं एक दफ़ा फिर ठोस ज़मीन पर मौजूद था. I hastily untied my turban. Untied means खोलना, and hastily means quickly, swiftly, तेज़ी से, जल्दी से, फुर्ती से. I hastily untied my turban from its foot. मैंने उसके पाँव से अपनी पगड़ी को खोला, या तेज़ी से अपनी पगड़ी को खोला. and freed myself, और अपने आप को आज़ाद कर दिया. The valley in which I found myself was deep and narrow and surrounded by mountains which towered into the clouds and were so steep and rocky that there was no way of climbing up their sides. As I wandered about, seeking anxiously for some means of escaping from this trap, I observed that the ground was covered with diamonds. The valley, वो वादी, in which I found myself, जिसमें मैंने अपने आप को पाया, was deep and narrow. Narrow means तंग, and deep's English meaning is dark. Deep, dark, यानी कि तारीक. The valley, वो वादी, in which I found myself was deep and narrow. वो वादी जिसमें मैंने अपने आप को पाया वो तंगो तारीक थी. and surrounded by mountains, और पहाड़ों से घिरी हुई थी. which towered into the clouds, जो के बादलों की तरह बुलंद थे. टावर्ड ऊंचाई की बात कर रहा है, ठीक है, बुलंदी की. और किन की? पहाड़ों की, ठीक है, कि पहाड़ बादलों की तरह बुलंद थे. एंड वर सो स्टीप एंड रॉकी, और वो इतने डहलवानी और चट्टानी थे, इतने ऊंचे और चट्टानी थे. दैट देयर वॉज नो वे ऑफ क्लाइंबिंग अप देयर साइड्स, कि उसकी इतराफ़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था. एज आई वॉन्डर्ड अबाउट, जैसे ही मैं इधर उधर घूमता रहा. Seeking anxiously for some means of escaping from this trap. Seeking means तलाश, look for. Anxiously, its English meaning is eagerly, यानी कि बेचैनी या फिक्रमंदी. Means, source, जरिया. Escaping, निकलना, ठीक है, या get away. And trap means snare, जाल.
एज आई वॉन्डर्ड अबाउट, जब मैं इधर उधर घूम रहा था, सीकिंग एंशियसली फॉर सम मीन्स ऑफ escaping फ्रॉम दिस ट्रैप, इस जाल से निकलने के लिए बेचैनी से कोई रास्ता तलाश करने का। बामुहावरा क्या करेंगे हम लोग के जब मैं इस जाल से निकलने के लिए बेताबी से कोई ज़रिया तलाश कर रहा था, तलाश करने के लिए इधर उधर घूम रहा था। आई ऑब्जर्व दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद डायमंड्स, तो मैंने मुशाहिदा किया, देखा, अंडरलाइन द वर्ड ऑब्जर्व्ड, इट्स इंग्लिश मीनिंग इज नोटिस्ड। तो मैंने मुशाहिदा किया या देखा दैट द ग्राउंड वॉज कवर्ड विद डायमंड्स, के ज़मीन जवाहरात से ढकी हुई थी। दिस साइड गेव मी ग्रेट प्लेयर बट माई डिलाइट वॉज स्पीडली डैम्प्ड व्हेन आई सॉ ऑल्सो नंबर ऑफ हॉरिबल स्नैक्स सो लॉन्ग एंड सो लार्ज that the smallest of them could have swallowed an elephant with ease. Underline the word sight, its English meaning is view, यानी कि मंजर. Then speedily, quickly, तेजी से. Then underline the word damped, its English meaning is weaken, मांद. Then horrible, खौफनाक. And then underline the word ease, its English meaning is comfort, आसानी से, इत्मीनान से. दिस साइड गेव मी ग्रेट प्लेयर, इस मंजर ने मुझे बहुत खुशी दी, बट माई डिलाइट वॉज स्पीडली डैम्प्ड, लेकिन मेरी खुशी जल्द ही, या तेज़ी से जल्द ही कर लें, ठीक है, लेकिन मेरी खुशी जल्द ही मांद पड़ गई, फीकी पड़ गई। व्हेन आई सा आल्सो नंबर ऑफ हॉरिबल स्नैक्स, जब मैंने बहुत सारे खौफनाक सांप देखे, सो लॉन्ग एंड सो लार्ज, जो कि इतने बड़े और लंबे थे, दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम, कि उनमें से सबसे छोटा, could have swallowed an elephant with ease, आसानी से एक हाथी को निगल सकता था। Fortunately, underline the word fortunately, its English meaning is luckily, खुशकिस्मती से। Fortunately for me, मेरी खुशकिस्मती थी। They seemed to hide in caves, underline the word hide, its English meaning is conceal. One more thing, here the comprehension question arises that what did Sindbad see in valley, सिंदबाद ने वादी में क्या देखा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये जो पीछे हमने लाइन पढ़ी है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग इसका आंसर बनाते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, सिंदबाद सा अ नंबर ऑफ हॉरिबल स्नैक्स इन द वैली। सो फॉर्चुनेटली फॉर मी, मेरी खुशकिस्मती थी, दे सीम्ड टू हाइड इन कैव्स ऑफ द रॉक्स बाय डे, कि वो दिन के वक्त इन चट्टानों में, चट्टानों की गारों में छुपते थे, एंड ओनली केम आउट बाय नाइट, और सिर्फ रात को बाहर आते थे। प्रॉबली बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक, गालिबन, यकीनन या शायद अपने दुश्मन अरबी रुख की वजह से। मेरी खुशकिस्मती थी कि ये सांप दिन के वक्त चट्टानों की गारों में छुपते थे और सिर्फ रात को बाहर आते थे, शायद अपने दुश्मन अरबी रुख की वजह से, ठीक है। आई थिंक सो दैट इट्स एनफ फॉर टुडे. Here one more comprehension question arises, and that is written in front of you, and the question is that when snakes hide in caves. So the snakes hide in caves during the daytime या by day, यानी कि दिन के वक्त वो क्या करते थे, छुपते थे। अब यहाँ तक बहुत है। ये जो अभी हमने प्रीवियस पढ़ा है, या कल का जो प्रीवियस लेक्चर था, तो इनमें अगर कोई ऐसा वर्ड जिसकी प्रोनाउंसिएशन में आपको कोई कन्फ्यूजन हो, या किसी लाइन की स्टेटमेंट में आपको कन्फ्यूजन हो, तो वीडियो को मैं बार बार दो से तीन दफ़ा तब नहीं पढ़ता हूँ इन लाइंस को, क्योंकि ये वीडियो है। आप इस वीडियो को बैक करके, ठीक है, ज़रा सा 2-3 सेकंड या 10 सेकंड या जहाँ से भी चाहें आप 10 बार, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, जबकि क्लास में हम बार बार रिवाइज़ करते हैं या रिपीट करते हैं उस लाइन को। सो मेन रीज़न ये है यहाँ पर रिपीट ना करने की। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट्स की तरफ। मेन पॉइंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर आर, द फर्स्ट मेन पॉइंट इज़ दैट सिंदबाद collected his provisions and went near to the white ball of immense player. The second main point is that suddenly a huge black cloud came quickly over him. The third main point is that the bird of extraordinary size was rock, and huge white ball was its egg. Fourth main point is that Sindbad tied himself tightly with the rock's leg. Fifth main point is that rock took him to a valley. The next point is that the ground was covered with diamonds. Next one was Sindbad saw a number of horrible snakes. And last but not the least point is that snakes hide in cave by day and only came out by night.
So these were the main points of today's lecture, and now moving towards your homework. Your homework is to write comprehension questions and new words of today's lecture on assignment pages with proper presentation. If you have any sort of a confusion in today's lecture, you can ask from me below there in comments. That's it. Thanks and have a nice day.